hey everyone, welcome back to another YouTube video. And this is Agami, and I post videos on biotechnology related stuff and subjects. So you can say I guide biotechnology students because there are very few videos on biotechnology, like properly, like how to pursue it and what to do and what not to do, and very little guidance is available on YouTube on this biotechnology. And a bit about me, currently I'm pursuing my master's in agricultural molecular biology and biotechnology from Central Agriculture University, Rani Lakshmi Bai Central Agriculture University in Jhansi, Uttar Pradesh. And I have done my graduation from Punjab University, like from a college affiliated to Punjab University, Chandigarh. Okay, so that was all about me. And one thing more, uh, please watch this video till the end. It will be helpful for you. And also, please watch all my previous videos because you are going to be benefited. Like, yeah, you might get bored because I don't do editing and stuff because I do not get the time to do that. And I say this in all my videos. I don't know why. Okay, from next time I'll not say. And every video will be very helpful to you. So if possible, watch it on 2x, uh, or even more speed if you can, but watch them because they are actually important, and you never know what one thing will change your life, right? So in today's video, we are going to talk about how to, this is a series that I'll be doing, in which I will take a subject and then I will be telling you how to, do that subject well. That you also do, like you do not have to put a lot of efforts in studying that subject, and still you score good marks. Okay, and then also you are like get prepared for like these competitions like GAT, GATE, CUET, etc., such that your time doesn't get wasted. Okay, now today I have picked the subject basic biochemistry. Now I don't know, see, every university have you know um, different syllabus in different semesters and different subjects, obviously. So I am following my graduation syllabus, that is of like Punjab University's BSc Honors Biotechnology syllabus. Okay, so in first or second semester we have this basic biochemistry subject. I will not pick subjects like chemistry, maths, English. If you have those subjects, I'm only picking up biotechnology related subject, like core जो आपका form करता है वो वाले subjects. So the first subject is basics of biochemistry. Okay, first of all, for biochemistry you should know chemistry. But because you have opted the subject and you have studied chemistry for like 2 years in your 11th and 12th, and some of you would have been preparing for NEET in the past, so it will be easy for you, and it's not very difficult, but you have to put in efforts. Okay, तो हमारा basic biochemistry में जो normal आता है, जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर पे यू हैव टू स्टडी वाई ना, वाई सी, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक इशू ये है कि हमें चीज़ पढ़ाते हैं बट उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं बताते फॉर द सेक ऑफ पढ़ाने, पर अब तो बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, अब टीचर्स वैसे नहीं हैं। पर एक टाइम में ऐसा होता था कि हमें जैसे एसएसटी पढ़ा रहे हैं स्कूल टाइम में, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं बता रहा कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले आपको स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ डालनी चाहिए कि हाँ, मतलब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है ना, मतलब उनके पहले 1-2 दिन तो उनके दिमाग में ये डालना चाहिए कि ये चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मतलब एवरीवन विल टेक दैट सीरियसली। तो पहला है वाटर। नाउ आई टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर, इफ देयर विल बी नो वाटर देयर विल बी नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, सेल के अंदर हमारी बॉडी is 70% वाटर, सो वाटर बिकम्स एन ईजी टॉपिक टू बी कवर्ड, राइट? तो सब्जेक्ट्स लाइक वाटर, टॉपिक्स लाइक वाटर, तो इसमें ऐसे आ जाती हैं कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, अल्फा, पीएच, बफर्स। एंड नाउ पीएच एंड बफर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़ना ये वाला टॉपिक। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप मीडिया बनाओगे आगे, है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट जो है, व्हेन यू विल बी एक्सपेरिमेंटिंग। नाउ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है,
अगर तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज है, यू माइट क्लियर योर एग्जाम, बट अगर तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज इज ऑल्सो लाइक ज़ीरो ही, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जैसे पीएच, बफर्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अब मैं बुक्स भी बताऊंगी आपको एंड में कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद पीआई पीके हो गया हमारे पास, फिर हेंडरसन हेजल बैच इक्वेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, इम्प्लीकेशन कहाँ अप्लाई होता है, ये सब। तो ये वाली जो केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री आई गेस बोलते हैं, तो ये आप कर सकते हो फ्रॉम द बुक। वी हैव एक हमारे पास बुक है, विच वन, हार्पर्स। हार्पर्स में अच्छी दी हुई है, बट वन इशू विद द हार्पर्स वाली बुक इज कि इट्स वेरी नॉट इंटरेस्टिंग, ऐसे कोई डायग्राम ऐसा कुछ नहीं, वेरी प्लेन बुक, वेरी प्लेन बुक, लेकिन उसमें दिया काफ़ी अच्छा हुआ है। बाकी वी हैव फॉर बायोकेमिस्ट्री वी हैव लेनिंजर, ठीक है, वी ऑल्सो हैव जे एल जैन आई गेस, वी हैव एम एन चटर्जी, वी हैव उपाध्याय, तो काफ़ी बुक्स हैं। लेनिंजर एक स्टैटिक बुक है, लॉट ऑफ पीपल, एवरी वन फॉलोज इट, फॉरेन ऑथर की, वेरी कॉस्टली ऑल्सो, बट लाइब्रेरी में होती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री की बुक्स भी आई विल, यू नो, आई पुट इट समवेयर ऑन टेलीग्राम और समवेयर, ठीक है। तो यूल गेट इट फ्रॉम देयर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कहाँ मतलब पोस्ट कर दूंगी वो बुक्स आपके लिए, सच दैट यू कैन यूज़ इट। वैसे आपको कॉलेज वाले भी दे देंगे, अगर नहीं देते हैं तो यू कमेंट डाउन, ओके, तो आई विल शेयर इट इवन जल्दी, आई ट्राई। Then we have carbohydrates. Now carbs are very important topic. उसके बाद है लिपिड्स, उसके बाद है vitamins, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए डीएनए, देन वी हैव प्रोटीन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये वो, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये तुम्हें करने लेनिंजर से हैं। एम एन चैटर्जी बहुत अच्छी बुक है, उपाध्याय बहुत अच्छी बुक है, और भी एक दो बुक्स हैं, हार्पर्स, लिपनकॉट इज ऑल्सो वेरी नाइस बुक, वेरी नाइस बुक, ठीक है। तो मतलब बायोकेमिस्ट्री का तुम्हें वैसे ना हर बुक में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, जो मेन मेन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है। इसको तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसे नहीं लेना कि हो सिलेबस है, अरे बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं बैचलर्स में, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू, यू नो, और हाँ, हाउ, अब मैं आई विल टेल यू हाउ टू मेक बायोकेमिस्ट्री नोट्स, ठीक है, वेरी सिंपल। सुनो, यू पिक अप अ टॉपिक, ठीक है, जैसे मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ ही है। अब जैसे वाटर है, ठीक है, इसमें ना वाटर वाले चैप्टर में तुम्हें ये हैंडरसन हेजल बैच इक्वेशन की डेरिवेशन याद करनी होती है। एक बार अच्छे से तुम्हें एफर्ट सिर्फ एक बार डालना है, बार बार नहीं डालना। और मेरी बात मानो, अगर तुम कीप सेपरेट नोटबुक्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट, और कुछ लोग क्या करते हैं कि ये एक ही सब्जेक्ट की 4 नोटबुक्स लगा लेते हैं, आज यहाँ लिखते हैं, कल वहाँ लिखते हैं, और मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ ये मत करना, क्योंकि फिर वो चीज़ ना तुम्हें एक जगह पे मिलती नहीं है एग्जाम से पहले। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, ये एक बहुत, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। तुम मेहनत करोगे तब भी वो वेस्ट हो जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स में, तुम कॉलेज एक नोटबुक लेके जाते हो पूरे दिन, उसमें जो मैम पढ़ाते हैं साइड साइड पे नोट करते हो, इट्स फाइन, पर घर आके यू हैव टू सी, कुछ चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम एक डे फिक्स कर लो सिंपली, ठीक है, सिर्फ एक डे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो तुमने सोचा कि मैं मंडे बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, पूरे वीक तुमने वो नोट्स लिखे, लेकिन एक बात और है, जब टीचर ने वो नोट्स बनवाई, जब तुम क्लास में होते हो, टीचर नोट्स बनवा रहा होता है, तो हम सारे नोट्स नहीं बनाते, हम उनको शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें घर आके वो एक बार गो थ्रू करना है, पूरे दिन में क्या कराया था, जस्ट एक बार हल्का सा एक बार रीड मारना है, और तुम टाइमर लगा के रीड मार, मतलब स्टॉप वॉच ऑन करना, और देखना है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, जब तुम्हें सिर्फ एक बार पढ़ना है कि अच्छा ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। अब हमारा जैसे मंडे आया, ठीक है, अब मुझे पूरे मंडे तो जो स्टार्ट ऑफ द वीक हो गया, वेडनेसडे ले लेते हैं। वेडनेसडे आया, तो तुमने सोचा कि आज मैंने बायोकेमिस्ट्री करनी है, तो तुमने पुराने अपने सारे मतलब ऊपर ना ऐसे नोट्स बनाना, जैसे क्लास में तुम्हारे पास सिंगल रजिस्टर है, व्हाट यू विल डू इज लिखो बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर दिस दैट यू अटेंडेड, पुट डेट,
डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में कई बार ऐसा भी होता है ना इशू कि टीचर अटेंडेंस नहीं देते, ये वो, तो तुम गिन सकते हो अपना, या वैसे टीचर से भी मांग सकते हो, और पोर्टल्स पे भी होता है। बट स्टिल अपनी डेट वाइज ही मेंटेन करना, ताकि तुम ट्रैक कर पाओ, ठीक है, तुमने कब क्या किया। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सारे मतलब हफ्ते में जो भी बायोकेमिस्ट्री का तुम्हें पढ़ाया गया है उसको एक बार रीड करो, एक बुक उठाओ, अपने नोट्स, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उन छोटे छोटे नोट्स को दोबारा देखने में, क्योंकि तुमने जिस दिन कराया था उस दिन तुमने आके देखा था, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, देखा था, तो तुम्हें मुश्किल नहीं आने वाली। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक बार वो नोट्स देखे उसके बाद खोलो बुक। अब प्रॉपर एक डेफिनेशन चूज करो। अब तुम क्या कर सकते हो, जहाँ मैंने चैट जीपीटी का जो बताया था कि चैट जीपीटी से बोलो दिस इज माय टॉपिक, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज योर टॉपिक, ठीक है, तुमने डाल दिया। अब तुम्हें चैट जीपीटी तुम्हें नोट्स देगा, ठीक है, तो तुमने सिर्फ ये देखना है कि वो हेडिंग्स का देना है, बिकॉज चैट जीपीटी गिव्स यू वेरी गुड हेडिंग्स, ठीक है, और वो बुक्स नहीं देती हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारी हेडिंग सही है, तो अगर तुम्हें हेडिंग पता है ना, तो तुम अंदर का लिख लोगे जैसे तैसे। और टीचर भी अगर तुमने हेडिंग ऐसे बोल्ड कर दी, अंडरलाइन कर दी, और टीचर भी समटाइम्स उन्हें इतने पेपर चेक करने होते हैं, दे डोंट गो थ्रू व्हाट्स रिटन इन साइड। बट मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि ऊपर हेडिंग लिख के नीचे गाने लिखाऊंगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। यू हैव ऑप्टेड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ लोग नंबर काटने के लिए बैठे, यहाँ पे देने के लिए कोई नहीं बैठा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो उसके बाद तुमने हेडिंग सीख ली, उसके बाद तुम बुक रीड करो, और एक बार में एक ही बुक रीड कर लो, ठीक, मतलब सिर्फ एक बुक उठाओ एक दिन। मतलब तुम ऐसे करना, जो बुक्स तुम्हें मिली होंगी, प्रोवाइडेड होंगी, टीचर नोट्स देता है, ठीक है, अगर तुम्हारे टीचर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो अपने नोट्स में इनकलकेट करना ही करना। और जब तुम ना टीचर का लेक्चर सुनते हो, वो टीचर कभी कभी कुछ चीज़ों पर बहुत फोकस करके बोलते हैं, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे पूछा जाता है, तो साइड पे लिख लो कि हाँ ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये आ रहा है क्वेश्चन, और पीवाईक्यू से भी मैच कर लो। अब तुमने वो क्या करा, तुमने अपने नोट्स एक बार रीड करे, फिर तुमने एक बुक खोली, तुमने वो टॉपिक रीड करा। अब देखो बचपन वाली चीज़ नहीं है कि चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं चलती, अब टॉपिक वाइज चीज़ें चलेंगे। जितना जल्दी तुम इस कल्चर को अडाप्ट कर लो, इट विल बी बेटर। मुझे तो टाइम लगा था ऑनेस्टली, और ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जो मैंने की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे और मार्क्स आ जाते, वैसे तो मेरे ठीक ही आए थे, बट हाँ ठीक है, मतलब फिर भी सी इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कितना बढ़िया किया, इट्स अबाउट मैं और कितना बढ़िया कर सकती थी। इट्स देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हाँ तो तुम, और आई डू नॉट यूज टू स्टडी इन बैचलर्स, मतलब स्टिल आई गॉट गुड स्कोर, सब सही गया, बट मुझे करना चाहिए था, दैट इज़ व्हाट आई फील, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने अपने नोट्स पढ़े, उसके बाद तुमने बुक पढ़ी, बुक से तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, ठीक है। उसके बाद तुरंत नोट्स नहीं बनाने बैठना, ओके, पिक पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यूज पिछले 4-5 साल के उठाना, ठीक है, उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढना, शॉर्ट और लॉन्ग। उसके बाद वो क्वेश्चंस लिखो, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस बुक में ढूंढो। अगर तो वो बुक में आंसर्स तुम्हें मिल रहे हैं इजीली, इट्स वेरी गुड, दैट बुक इज मेंट फॉर यू। अगर उसमें इजीली आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, यू गो टू चैट जीपीटी, यू सर्च फॉर द आंसर, नाउ यू गो टू द बुक, नाउ ट्राई टू रिलेट, ठीक है, और फिर तुम एक अच्छा सा आंसर अपने कॉपी पे लिख लो, देन एंड देयर, जो तुम्हारी नोट्स वाली कॉपी है, ठीक है, कॉलेज वाली कॉपी नहीं। उसके बाद ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुमने वो वाले क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए, और बैचलर्स में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की, कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस तरह से टॉपिक लिया, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लिए, उसके आंसर्स लिख लिए, तो तुम्हारा फेल होना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, फेल होना इम्पॉसिबल है। अब तुमने अपने आप को फेल होने से बचा लिया, ठीक है, अब तुम्हें अपने आप को रेस में जीतने मतलब पे फोकस करना है, तुम्हें भागना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लेनी है बुक, और अब तुम्हें बनाने हैं नोट्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। अब तुमने नोट्स बना लिए हैं, नोट्स बनाने के बाद
अब तुमने जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए, सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखा, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए। पर क्वेश्चन आंसर्स तुम ये नहीं कि पीवाई की ढूंढा, चैट जीपीटी से क्वेश्चन सर्च कर लिया, तुरंत वो लिख लिया। मैंने बोला पहले बुक पढ़नी है, उस टॉपिक का मतलब जो भी है वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो वो पहले पढ़नी है, क्योंकि वो ही, क्योंकि तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी बुक, तुम्हें जो बुक है क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है तुम्हारे यूनिवर्सिटी या तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी हो गया। अब मैं बुक, जो मैंने बुक रीड की थी उसमें मैं थोड़ी चीज़ें मुझे याद रहेंगी ना कि मुझे को क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अगर तो याद रहती है तुम्हें, तुम मार्क कर सकते हो, तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी है, मतलब हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है, तुम लैपटॉप पे उसे हाईलाइट या अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स गुड। तो यू डू नॉट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, अदरवाइज यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड उसके बाद यू हैव टू मेक नोट्स। जितना तुम डायग्राम्स, अच्छा बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमारे structures are important, formulas are important, और exceptions are extremely important। और और जहाँ अगर तुम कहीं पे डायग्राम दे सको तो डायग्राम देना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन्स का क्वेश्चन आता है या न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रोटीन्स के कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, लाइक है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर, प्राइमरी तुमने एक सिंगल थ्रेड बना दी है, क्वाटरनरी तुमने एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो दिस इज वेयर यू विल स्कोर मोर मार्क्स देन योर पेयर्स इफ यू राइट बेटर आंसर्स, ठीक है। ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेजेस का तो मुझे नहीं पता कि भरने से ही होता है, क्योंकि अगर तुम्हें आता है ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर आता है, तुम 10 पेज आराम से भर सकते हो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारे लिए आधा पेज भरना भी मुश्किल होगा। हाँ, वो ये है कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड मेक प्रोटीन, ऐसे वाले आंसर टीचर और इरिटेट हो जाता है और नंबर काटता है। ऐसी हरकतें मत करना, अवॉइड देम, ठीक है। हाँ, तो अब से बायोकेमिस्ट्री में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर सब्जेक्ट के लिए है। ये मैं हर वीडियो में बोलने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मुझे इससे देख के याद आ रहा है वो है, नहीं मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो अब आपके सीक्वेंस, आई टेल यू द सीक्वेंस वंस अगेन, ठीक है। यू विल डू first of all you will read the chapter, sorry, first of all you will read the class notes, teachers notes, then you will read the book chapter, ठीक है। एक बुक सिर्फ, ओनली सिंगल बुक आई एम टेलिंग यू अभी, ठीक है। सिंगल बुक से आप वो लिखोगे, मतलब पढ़ोगे और अंडरलाइन या मार्क करोगे ताकि तुम्हें दोबारा इजी हो वापस आने पे। Then you will go to the question papers, then you will go to ChatGPT for the answers. You don't have to write ChatGPT के ditto answers, you have to take idea and headings, ठीक है। Then you have to write the answers and then you have to make notes from the book, बस इतना ही करना है। आई नो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप तो एक सब्जेक्ट का बता रही हो और हमें 100 सब्जेक्ट करने हैं, ऐसा वाला मत करना, क्योंकि हमने भी करे हैं, सबको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारे से पहले भी लोग कर रहे थे, तुम भी करोगे, तुम्हारे बाद के लोग भी करेंगे, तो ये सिंपल है ना। हम्म। और हाँ, अब तुम्हारे नोट्स बन गए हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा पूरा जो भी सिलेबस के जितने भी यूनिट्स हैं तुम्हारे डन हो चुके होंगे, तब पेपर से पहले यू विल रीड योर नोट्स, वेल एंड गुड। अब तुम पेपर के पास, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी होती है, या फिर अगर जैसे तुम्हारा काम वो ख़त्म हो गया तो तुम दूसरी बुक उठा सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। और वैसे अगर तुम बीच में भी अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये बुक मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस किताब से, तब तुम स्विच कर लो और एक और बुक खोल के तुम उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक बुक से आपके वो वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं ना जो PYQ वाले थे, तो आपको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए उस टॉपिक के लिए। और ऐसा नहीं होता कि एक ही बुक से सारे टॉपिक करने हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अलग अलग बुक से अलग अलग टॉपिक तुम कर सकते हो, यू नीड टू कंपेयर। बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए एक बुक से कर लो, नो इश्यूज़। तो अब उसके बाद एंड में जब तुम्हारे नोट्स बन गए हैं, तब तुम एक दूसरी बुक उठाओ और देखो कि तुम्हारे नो तुम उस बुक को पढ़ोगे और तुमने अपने नोट्स पढ़े होंगे, तो तुम्हें पता होएगा कि अच्छा ये चीज़ तो उस बुक में भी दी थी, और अरे ये चीज़ तो इस बुक में ही दी हुई है, उस बुक में दी ही नहीं थी। यू पिक दैट थिंग, jot it down on your notes, and that's it, and that's how you will have very good notes। और ये ही नोट्स तुम्हारे मास्टर्स में काम आएंगे, मेरी मानो। BSc के बाद जॉब लगना
इज़ डिफ़िकल्ट, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और अगर तुम जॉब ले भी लेते हो, देयर इज़ नो पे, कोई पे स्केल बहुत ख़राब है, ठीक है, तो तुम्हें मास्टर्स तो वैसे भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है ना, एक बार ढंग के नोट्स बना लो। अब मुझे भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है अपने मास्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अगर मेरे पास इसके नोट्स हैं तो आई एम वेल ऑफ, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। ओके, पर मेरे पास नोट्स नहीं है, सॉरी गाइज। अगर तुम लोग फिर कहते हो कि मैम नोट्स दे दो, मैं कहाँ से दूँ? मेरे मेरी मेरी सारी नोटबुक्स आर एट होम पंजाब में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज मैंने तुम्हें बायोकेमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम वी विल पिक अप अनदर सब्जेक्ट, होपफुली वी विल पिक अप सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो फिर हम ये मिलते हैं नेक्स्ट वीक, एवरी संडे अ वीडियो विल कम, होपफुली मैं कर लूँ ये चीज़, ठीक है। एंड देन आई टेल यू हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर द बुक्स, ठीक है। बाकी योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी। जब तुम लोग कमेंट करिए, वो सवाल पूछते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। सी, क्योंकि इफ़ यू आर कीपिंग से, शेयर करने से भी तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, बदले में तुम्हारा फ़ायदा ही होएगा, ठीक है। अच्छे कर्म करने से जितना देते हो उतना मिलता है, भगवान देते हैं, ऊपर वाला देता है, ठीक है। तो that's it for today. If you like the video, make sure you like the press the like button, subscribe to my channel and share with it with your friends. That's it. Bye bye, take care everyone.